Hello students, my name is Jatin and today we are going to do exercise 9.1 of class 10th maths. So let's begin. So question number 1 says a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, there is a pole in this question. So suppose this is a pole, okay, and there is a rope attached to the top of the pole and this rope extends till the ground, okay, somewhere at this point, right? A circus artist is climbing this rope and the length of the rope is 20 meter, that is given to us, and every pole stands on the ground at the angle of 90 degree, that everyone knows. Okay, this is angle 90, so let's name it A, B and C, and we need to find the height of the pole. Okay, so we'll apply trigonometry in triangle ABC and the angle made by the rope to the ground is 30 degree. Okay, for the concept video of applications of trigonometry there is another video of mine, please check that video. That video also contain exam type questions also. Okay, this is the video of only exercise 9.1, right? So we'll apply, so I'll not discuss any concept here, I'll directly solve the question. Okay, in triangle ABC we'll apply. Okay, we need to find AB na, and we are given hypotenuse, rope is hypotenuse, right? So I'll apply sine 30 is equal to AB upon AC, right? Sine 30 everyone knows 1 by 2, right? AB is what we need to find, and the rope is 20 meter. Okay, so the length of the rope is 10 meter, so AB we have solved 10 meter, right? So let's move on to question number 2. Question number 2 says a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. Okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, so there was a tree which was broken. Okay, this is a tree, let's say, and it broke from here. Let's say this point is A, right? It broke from here and the broken part, that the fallen part, will touch the ground. Okay, due to storm the tree broke and the broken part will touch the ground, right, at an angle of 30 degree. Yes, and this distance is given to us as 8 meter from the foot of the tree, foot of the tree to the top of the broken part, right? Okay, so do you agree that this length and this length will be same, right? Because the broken part will touch the ground and this was the broken part only, right? This and this. Yes, okay, if you agree with me, then we need to find the height of the tree. Okay, we are given 8 meter as base. Okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Okay, let's name it A, B and C, and let's okay, only we'll apply, and tree stands on the ground at the angle of 90 degree, right? So in triangle ABC, again ABC, will apply tan 30. Okay, tan 30 is AB upon BC, right? Perpendicular upon base everyone knows, 1 upon root 3 is equal to perpendicular we don't know, base we know 8, right? So we have got AB as 8 upon root 3, right? But that is not the complete height of the tree, right? Because this height, this 8 by root 3 still stands on the ground, right? That is, we need to find also the broken part. Okay, so for the broken part we know now AB, right? 8 upon root 3. We need to find now AC. So for AC we know cos 30 is equal to base upon hypotenuse, right? So cos 30 we know, cos 30, what is the value of cos 30? Root 3 by 2, right? So root 3 by 2. BC is 8, and AC we need to find, right? Now we will get AC from this. Okay, so AC, the value of AC will be 16 upon root 3. Okay, so our total height of the tree will be AB plus AC. Our total height of the tree will be AB plus AC, right? So total height of tree will be AB plus AC, because this AB wala part is still standing on the ground, right? And this is the broken part AC. So this was the, I am finding the initial height of tree. So you add both these, so 8 upon root 3 plus 16 upon root 3, I hope I have done the calculation right. 24 upon root 3 आ गया,
अगर देखो मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो आंसर यही है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। आई हैव अप्लाइड ए इन ट्राइंगल ए बी सी, आई हैव फाउंड tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। ओके, ए बी अपॉन 8, ठीक है, ए बी तो ठीक है। अब ए सी देख लेते हैं, और फिर मैंने लगाया ये 8 अपॉन ए सी, सो 8 अपॉन ए सी इज इक्वल टू √3/2, सो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 16√3, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री इज दिस 24 upon √3. Okay, let's move on to question number 3rd. Question number 3rd says a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. What should be the length of each length of slide in each case? Right. Okay. So there are 2 slides. This is slide 1 and this is slide 2. Okay, this is for the younger children, right, for the small children, and this is for big elder children, right? Okay, this is for big kids, right, also this is for small kids, right? So there is a slide, every slide stands on the ground at an angle of 90 degree. The चढ़ने वाला पार्ट जो भी होता है तो ये 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है, और वो जो फिसलने वाला पार्ट है उसी को मैं स्लाइड बोल रहा हूँ। और वो और क्या क्या दिया हुआ है, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, सो 1.5 मीटर का स्मॉल किड्स के लिए, एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन द हाइट इज़ 3 मीटर। ओके, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ स्लाइड। एंगल इज़ ऑल्सो गिवन टू अस एज 30 डिग्री, तो छोटे बच्चों का तो एंगल छोटा ही होगा, ठीक है, बड़े बच्चों का थोड़ा 60 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ नेम इट ए बी सी एंड डी ई F. Okay, now you need to find AC, that is the slide, ठीक है, और DF, that is also the slide for the elder kids, right? Okay, in triangle ABC in triangle ABC will apply, so AB upon, sorry, हमें AC निकालना है ना, तो AC निकालना है, AC हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, तो हाइपोटेन्यूज कौन से उससे निकलेगी, कौन से रेशो से निकलेगी, साइन से निकलेगी ना, साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट, एंड फॉर DF we need, so again sin 60 is equal to DE upon DF. Okay, sin 60 everyone knows √3/2, DF we need to find. Okay, so DE upon DF, right, DE we know 3, so the value of DF will be, DF की वैल्यू आ जाएगी DE 3 into 2 upon √3, so 2√3 will be the value of, I hope you understand the calculation of this. See, √3 into √3 3 होता है, तो √3 1 √3, √3 into √3 3, तो 2√3 is the value of DF, right? So we need to find sin 30. Okay, sin 60 ये तो बड़े वाले बच्चों का है, स्लाइड है, ठीक है, ये वाला। अब छोटे वाले बच्चों को निकालो, पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। लेट मी रब दिस। ओके, आई नीड टू स्पीक लाउडर। ओके, sin 30 वी नो 1/2 AB, AB इज़ 1.5 एंड AC कोई मीटर सेंटीमीटर का पकड़ तो नहीं है, नहीं, ठीक है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 into 2, दैट इज़ AC इज़ 3 मीटर, सो 3 मीटर का इनका स्लाइड होगा और इनका 2√3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर दी होगी तो डाल देना, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 90 डिग्री, फाइंड द एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, 90 है या कुछ और है, 30 है, 30 होगा यार ये, सॉरी। The angle of elevation of the top of the tower, ये रहा, ये टावर है, from a point on the ground which is 30 meter away 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, 30 हो गया, सॉरी मैंने 90 लग रहा है, लेकिन है वो 30, 90 तो हो ही नहीं सकता, 30 डिग्री, क्योंकि टावर विल स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। सो दिस इज द टावर विच स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, यार इसको सही करो थोड़ा, एट एन एंगल ऑफ 90, अबे यार 90 डिग्री। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड, आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी नीड टू फाइंड AB, राइट। इन ट्राइंगल ABC अगेन will apply tan 30 because tan 30 includes perpendicular and base, and perpendicular is AB only, so BC we know, AB we need to find 30 is equal to 1/√3, so AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
30 upon root 3. Can I write 30 as 10 into 3 upon root 3? So value of AB will be 10 root 3. 10 root 3 is your answer. Okay, आपको यहाँ तक सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ओके, अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. So a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, so this this is the height at which the kite is flying. Okay, 60 meter above the ground. Okay, यहाँ पे है ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है ये काइट है. ठीक है, the string attached to the kite. Okay, string मतलब वो धागा, क्या बोलते हैं उसको, मांझा. एंड देयर इज नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग. ओके, वो एकदम स्ट्रेट है, स्लैक नहीं है, स्लैक नहीं है उसमें. ठीक है, ठीक है. And this string is tied to the point on the ground, right? The inclination of the string with the ground is 60 degree. Okay, find the length of the string. Okay, we need to find again hypotenuse, right? Okay, so we are given perpendicular and we need to find hypotenuse, and we are given the angle. So what will you do? Which ratio you will apply? Sin 60. Sin 60 apply करोगे ना, AB upon AC. So sin 60 is nothing but root 3 by 2. AB we know 60 upon AC. Okay, yes, so AC we need to find 120 upon root 3 is your value of AC. अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो 120 को आप लिखो 60 इंटू 2 अपॉन रूट 3. ठीक है, और अगर उसको और सॉल्व करना है तो उसको लिखो 60 को लिखो फिर आप 3 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन रूट 3. राइट, 60 को मैंने लिखा 3 इंटू 20. राइट, और रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 रूट 3 मीटर. Let's move on to question number 6. Question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, so building है यहाँ पे एक इमारत, ये रही इमारत, और 1.5 मीटर बॉय है, 1.5 मीटर का लौंडा है. ठीक है, तो ये 1.5 मीटर का लौंडा क्या कर रहा है? Standing at some distance from the 30 meter tall building. Okay, we know the height of the building is 30 meter, right? The angle of elevation from his eyes, उसकी eyes से, आँखों से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, तो अभी वो 30 डिग्री पे है. ठीक है, 30 डिग्री पे देख रहा है, फिर वो कुछ कदम आगे चलता है, यहाँ पे होता है, हाइट तो सेम ही रहेगी, फिर वो अपनी आंखों से 60 डिग्री पे देखता है. क्योंकि देखो जितना बिल्डिंग के पास जाएगा उतना उसको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, और जितना गर्दन ऊपर करोगे उतना ही एंगल बढ़ेगा. ठीक है, अब एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. ओके, A B C D, वी नीड टू फाइंड CD. ओके, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड CD. So how do we find CD? We know the height of the building. Okay, let me think. Okay, first of all, from triangle ABD I'll apply tan 30. ABD को देखो tan 30 अप्लाई करोगे तो AB upon BD, right? So tan 30, the value of tan 30 is 1 upon root 3, and AB you know 30, and BD you can find. So BD will be 30 into root 3. So we have got the entire length of BD. So this we have got. Okay, 30 root 3. So now from triangle ABC, now you'll apply trigonometry in triangle ABC. Tan 60 will be equal to AB upon BC, right? So root 3, the value of tan 60 is root 3. Everyone knows. If you don't, please remember all the values. Okay, AB you know 30 and BC. So BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 अपॉन रूट 3. So you know BC, this वाला part, BC is 30 upon root 3. Can't you find DC now? Yes, we can find BD minus BC. Okay, let me rub this. Okay, now DC की वैल्यू क्या होगी? BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूँ, प्लीज़ ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. इफ़ आई सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम BD, shall I get the value of CD? Yes. So 30 root 3 minus BC. BC is 30 upon root 3. Okay, how will you solve it? Root 3 into root 3. I have told you many times that root 3 into root 3 is 3 only. So 30 into 3. Right? If you take the LCM, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 तो है ही,
तो नीचे तो √3 है, 90 माइनस 60 यानी सॉरी 90 माइनस 30 इज 60 and 60 upon √3 is your answer. Again I have told you in the previous question also you can break 60. How you can break 60? 60 you can write 2 into 30, yes, और नीचे तो √3 है ही. अब 30 को और क्या लिख सकते हो, देखो 2 को 2 ऐसे रहने दो, 30 को लिख सकते हो 3 into 10, yes, अपॉन में √3 तो चल ही रहा है, ठीक है. अब √3 वन √3 into 3 is √3, sorry √3 into √3 is 3, so your final answer is 20 √3, 2 into 10 is 20 and √3 तो चल ही रहा है. So this is your final answer. Okay, the length of CD. Okay, let's move on to question number 7 now quickly. So question number 7 says from a point of the ground the angle of elevation of the bottom and the top of this transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Again we are given a building 20 मीटर टॉप बिल्डिंग, ठीक है, 20 मीटर की यार इमारत बनाते हैं. ये है 20 मीटर की इमारत, चल भाई 20 मीटर, ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एक मिनट पढ़ना पड़ेगा इसको, यहाँ पर है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये है बिल्डिंग, ठीक है, और ये है टावर पिंक कलर का, ठीक है, इसके ऊपर टावर है. अब वो कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. देखो पहले तो ये टावर है, सॉरी ये बिल्डिंग है नीचे ब्लैक कलर की, और ये टावर है, ठीक है. अब वो कह रहा है कि बॉटम में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कम ही होगा, कितना है 45 डिग्री, क्योंकि गर्दन ज़्यादा ऊपर नहीं उठानी. अब लेकिन अब जब टॉप ऑफ द टावर देखोगे ना तो गर्दन बहुत ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ जाएगी, ठीक है. अज्यूम दैट दिस इज़ अ स्ट्रेट डॉटेड लाइन, ठीक है. तो ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री का है, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, कुछ तो गिवन होगा. बिल्डिंग की हाइट दे दो 20 मीटर की, 20 मीटर की बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है. तो ए बी सी एंड डी, यू नीड टू फाइंड ए डी, वी नीड टू फाइंड ए डी and you are given AB as 20 meter, that is the height of the building. Okay, you will write the given, okay, the statements that the height of the building is this, we need to find this and all this ram kahani, you will write it. Okay, I am directly solving it. So how will you find tower? Tower देखो दो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है. दो ट्राइंगल कैसे हैं, इन ट्राइंगल हाँ ABC में लगाओ, ABC में 1045 लगा दो, ठीक है. और हमारे पास एक साइड कॉमन है ना BC, देखो BC कॉमन है, कॉमन का सहारा लो, इस कॉमन का सहारा लेके विद द हेल्प ऑफ द कॉमन कैन आई फाइंड DA. देखो कैसे कर निकालूंगा मैं, 1045 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, राइट. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, सो BC इज इक्वल टू AB अपॉन 1045 एंड 1045 इज नथिंग बट 1 ओनली, सो BC इज इक्वल टू AB, राइट. सो इफ BC इज इक्वल टू AB शैल आई अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन बिगर वाला ट्राइंगल, सो DBC. अब DBC में लगाओ 1060 लगाओगे तो DBC आपको मिलेगा DB अपॉन BC, राइट. BC अब क्या करो, 1060 की वैल्यू डालो √3, ठीक है. BD को तो ब्रेक करो, कैन यू ब्रेक BD कैन आई ब्रेक इनटू DA प्लस AB अपॉन BC तो चल ही रहा है, ठीक है. और आपको ये बात भी समझ में आती है क्या मैं BC को रिप्लेस कर दूँ AB से, क्योंकि BC एंड AB आर इक्वल, राइट. तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बस हो गया. तो यहाँ के बाद देखो अब √3 इज इक्वल टू DA, that is what we need to find, and AB that is given to us as 20, and shall I replace BC with AB, ठीक है. ये BC की जगह मैंने AB लिख दिया, तो अब तो हो गया, क्योंकि AB यू नो 20, इसको मिटा दें अब. तो √3 इज इक्वल टू AD प्लस 20 अपॉन 20, सो 20 √3 इज इक्वल टू AD प्लस 20, सो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AD. सो दिस इज योर हाइट ऑफ टावर, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 says a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ओके, पेडेस्टल मतलब जिसमें स्टैचू खड़ा होता है, आपने देखा है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे ऐसा कुछ पेडेस्टल होता है. तो
पेन दो यार। स्टैचू कितने का है, इसके ऊपर ये स्टैचू है ग्रीन कलर का, ठीक है। स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। और द ग्राउंड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका ग्राउंड का एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब ये इज़ 45 डिग्री, ये है पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू स्टैचू तो ऊपर है, सीधी बन जा, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल कितना है, 60 का ही होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ओके, सो लेट्स नेम इट ए बी सी एंड डी, राइट। ओके, ठीक है भाई, वो 45 गिवन है, वो 60 गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ बी सी, राइट, वी नीड टू फाइंड बी सी, ओके, दैट इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ओके, नाउ अगेन वी गॉट वन कॉमन साइड ना, देखो डी सी कॉमन है, डी सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, हमारे पास दोनों ट्राइंगल है, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी में लगाओ पहले आप 10 45, 10 45 इफ यू विल अप्लाई यू विल गेट बी सी अपॉन डी सी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी, डी सी की वैल्यू निकालोगे तो बी सी अपॉन 10 45 डेट इज़ 1 ही होता है, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में लगाओ आप 10 60, 10 60 फिर अप्लाई ए बी प्लस बी सी, सॉरी 10 60 will be equal to AC upon DC, and can I, so root 3 10 60 की वैल्यू AC, can I break AB plus BC and DC, can I replace DC with BC? Again a very similar question to the previous one। यहाँ से देखो मैंने DC को BC से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, अब सारे इक्वेशन हमें इससे खेलना है, ठीक है। सो रूट 3 BC इज इक्वल टू AB की लेंथ हमें पता है ना 1.6 प्लस BC हो गया, ठीक है। अब यहाँ से BC निकाल लो, सो BC इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, सो BC की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। यू कैन लीव दिस हेयर ओनली और एल्स यू कैन फाइंड दी रैशनलाइजेशन, ठीक है। अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो कर लो, रूट 3 की वैल्यू डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, राइट। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होएगा रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 और ये हो जाएगा 0.8। सो फाइनल आंसर इज़ 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अगर रूट 3 की वैल्यू गिवन होगी 1.732 तो डाल देना, वरना यहीं पे छोड़ देना। 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Find the height, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. Again a very simple question I say यार। ये रहा बिल्डिंग आपका, ये रही आपकी इमारत, और ये रहा आपका टावर, सॉरी कुछ बड़ा छोड़ो यार, अभी क्या बड़ा, दोनों ज़मीन पे खड़े हैं, बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एवरीवन नोस, राइट। ये 90 है, ठीक है। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बिल्डिंग है, आपको क्या मालूम है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मान लेते हैं क्योंकि टावर जनरली लंबा ही होता है और ये टावर होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो यहाँ पे देखो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये रहा फुट, ये एंगल कितने का है, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, 90 वाले को, is 30 degree, right, this angle is 30 degree। okay, now angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building। अब देखो ये फुट है बिल्डिंग का और यहाँ से टॉप तक कितना है 60 डिग्री। if tower is 50 meter high, find the height of the building, we need to find the height of the building। again you have one common side that is BC, BC is common ना, so BC हमारी मदद करेगा। देखो दोनों उस वाले ट्रायंगल से BC की वैल्यू निकालो और वहाँ डाल दो। देखो बिल्डिंग की हाइट यू नो, सॉरी टावर की हाइट यू नो, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, टावर की हाइट इफ यू नो देन यू विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन ABC। इफ यू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन ABC यू विल गेट 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, राइट। सो AB इज 50, सो 1060 रूट 3, सो रूट 3 इज इक्वल टू AB कितना है 50 अपॉन BC। सो BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 अपॉन रूट 3। सो यू हैव गॉट BC। इफ़ यू हैव गॉट BC
as 50 upon root 3. Can't you find now DC? How? In triangle DBC, tan 30 is equal to DC upon BC, right? So tan 30 everyone knows 1 upon root 3. DC you need to find, and BC you know 50 upon root 3. ठीक है. Okay, so DC की value will be 50 upon root 3 into root 3. So 50 upon 3 is your final answer. 50 upon 3 is your height of building. Let's move on to question number 10th. 2 points, 2 poles equal heights are standing. 2 poles are equal. This is first pole. This is second pole, or they both are of equal height. Okay, standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. This road is 80 meter wide. ठीक है. From a point between them, okay, somewhere this point, somewhere here, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. Okay, मान लो एक पोल बड़ा होगा, मान लो इसकी हाइट को ना थोड़ा बढ़ा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसकी हाइट को. अब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, और ये एंगल जो है 30 डिग्री का है. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ठीक है. और सॉरी मैं क्यों भूल गया कि उन दोनों की हाइट सेम है. ठीक है, हाइट सेम है, वही तो हेल्प करेगा हमारी. ए बी सी डी एंड ई. सो यू आर गिवन ए बी इज इक्वल टू डी ई. मतलब ये पॉइंट मैं सोच रहा था मिडिल में होगा, तो मैंने 60 डिग्री ऊपर ले लिया. देखो ये पॉइंट ना कहीं एक पोल की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, तभी वो एंगल डिफरेंट बना रहा है. ठीक है. तो अगर ये 30 डिग्री ए बी का देख रहा है तो 60 डिग्री उसका देख रहा है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये ई डी वाले पोल के ज़्यादा पास है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो. ठीक है. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ओके, यू आर गिवन दिस वैल्यू 80 मीटर, राइट. सो हाउ विल यू फाइंड. सोचने दो. अगर ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ, निकल जाएगा. इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. ठीक है. बी सी कैन आई राइट 80 माइनस सी डी. इफ़ यू एग्री विद मी ऑन दिस. बी सी देखो इतना सा है, इसको मैं लिख दूँ 80 माइनस सी डी. देखो पूरे में से अगर मैं सी डी माइनस कर दूंगा तो मेरे को बी सी मिलेगा. नहीं, क्यों नहीं. 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी, और बी सी यू विल राइट 80 माइनस सी डी. ठीक है. इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी तक. अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ई डी सी में. ई डी सी में देखो tan 60 लगेगा, ई डी अपॉन सी डी, राइट. सो tan 60 इज रूट 3 ई डी अपॉन सी डी, राइट. अब इन दोनों इक्वेशन के साथ खेलना है हमें. कैसे खेलोगे, कैसे. देखो एक बात देखो, यहाँ से मेरे पास ए बी है, मेरे पास ई डी है. यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकाल देता हूँ. नहीं सॉरी, देखो मेरे पास सी डी है, यहाँ भी सी डी है और यहाँ भी सी डी है. इफ़ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी फ्रॉम बोथ इक्वेशन, शैल आई इक्वेट दीज देन और नॉट, राइट. मैं चाहूँ तो ए बी और ई डी को भी इक्वेट कर दूँ, लेकिन मुझे वही फाइंड करना है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. तो ए बी और ई डी जो है ना वो इक्वल है, मैं अभी रिप्लेस करने ही वाला हूँ. मैं चाहता तो उसकी वैल्यू भी निकाल देता, लेकिन उससे लंबा हो जाता क्वेश्चन. लेकिन मुझे एक मिल गया सी डी कॉमन, तो हम उसी से चलेंगे. तो यहाँ से सी डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये रूट 3 80 माइनस सी डी इज इक्वल टू सॉरी दिस विल बी 80 माइनस सी डी इज इक्वल टू रूट 3 ए बी, राइट. सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 माइनस रूट 3 ए बी इज इक्वल टू सी डी. ये सी डी की वैल्यू जो आई है ना वो यहाँ डाल दो, यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, रूट 3 इज इक्वल टू ई डी अपॉन सी डी की वैल्यू देखो 80 माइनस रूट 3 ए बी. ठीक है.
नाउ शैल आई रिप्लेस ई डी विद ए बी, इस ए डी को अगर मैं ए बी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, नाउ यूल फाइंड ए बी. सो 80√3 minus 3ab is equal to ab. So 80√3 is equal to ab plus 3ab, that is 80√3 is equal to 4ab. ab की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20√3. So you have got ab as 20√3, so as ab ed also, ed will also be 20√3 meter because both the heights are equal. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस भी निकालना है सी से बी का भी और डी का भी, वो निकाल देते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी सी यू विल अप्लाई tan 30 एज ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, 1/√3 होता है. ए बी यू नो नाउ 20/√3, बी सी यू विल गेट बी सी इज इक्वल टू 20√3 इंटू √3 दैट इज 60. सो यू दिस इज 60. देखो अगर बी सी 60 है तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो 20 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 80 था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th. A TV tower stands vertically on the bank of the canal. From a point on the bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is exactly from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay. This is your TV tower, and this is a point, and this is a second point, right? So the angle of elevation to the top of the tower from this point is opposite. देखो जो point है वो tower के opposite है, तो this is tower and these are 2 points. Okay, from the bank directly opposite the tower, the angle of elevation to the top of the tower is 60 degree. This angle is 60 degree, right? And 20 meter away from this point there is another point 20 meter away from this point joining this point to the foot of the tower. ठीक है, join कर देते हैं. The angle of elevation of the tower is 30 degree. अब ये हो जाएगा 30 degree, right? So we need to find the height of the tower and the width of the canal. Okay, A, B, C, D. You need to find width of the canal, मतलब BC बताना है, and height of the tower is AB बताना है. ठीक है, ये दोनों आपको बताने हैं. चलो बताओ. कुछ गिवन है, 20 मीटर गिवन है. ठीक है, चलो इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी में लगाओ पहले आप tan 30 ए बी अपॉन बी डी, राइट? सो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3. ए बी यू डोंट नो, बट बी डी कैन आई ब्रेक डी सी प्लस बी सी इफ यू एग्री. डी सी इज 20 प्लस बी सी, राइट? ओके, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम हेयर फर्स्ट, बिकॉज बी सी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. देखो ये बी सी बड़े वाले में भी है और वो राइट वाले में भी है, तो फाइंड कर दो यहीं से बी सी की वैल्यू. सो ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी सी यू विल गेट 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी. सो बी सी की वैल्यू हो जाएगी √3 ए बी माइनस 20. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी. इफ यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ बी सी, now you'll apply trigonometry in triangle ABC. Tan 60 is equal to AB upon BC. Again you will find the value of BC. BC की वैल्यू हो जाएगी AB upon tan 60. tan 60 is nothing but √3. Okay, now you, this is also BC, this is BC also, right? Equating both these, √3 AB minus 20 is equal to AB upon √3. Okay, हमने दोनों को इक्वेट कर लिया. अब सॉल्व कर लो इसको. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab माइनस 20√3 इज इक्वल टू ए बी, एंड 3ab उस तरफ जाएगा तो 2ab हो जाएगा, तो 2ab इज इक्वल टू प्लस का 20√3. सो ab की वैल्यू यू हैव गॉट 10√3. सो यू हैव गॉट द हाइट ऑफ द टावर एज 10√3. अगर आपका सॉल्विंग वाला पार्ट अच्छा है तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को. और देखो इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी पड़ेगी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो फिर आप करोगे कैसे? मैथ्स तो सभी कर लेते हैं. BC की लेंथ भी निकाल लोगे. अब यहाँ से देखो, अगर ये 10√3 है AB और ये √3 है, तो BC क्या आ जाएगा आपका 10. सो BC इज़ 10 और वो आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ.
Question number 12 is from the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Find the height of the tower. Okay, there is a building, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है, यहाँ से ये टावर है, इसके आगे, ठीक है, बोथ टावर एंड बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन द सेम ग्राउंड, राइट, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों अलग अलग ग्राउंड पर खड़े होंगे, ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, देखो यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप टू द बॉड फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, देखो यहाँ राइट साइड में टावर है, ये बिल्डिंग है. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, डिप्रेशन इज 45 डिग्री. यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, दिस कंप्लीट हाइट यू नीड टू फाइंड. क्या फाइंड करना मैं बताता हूँ. ABCDE, you need to find AC complete, right? And you have two triangles, right? ABE and BCE, right? There is one side common in both, BE. So with the help of BE, we will find AB and BC. Okay. So in triangle ABE, you will apply first nothing. Okay. Yes. So tan 60 is equal to AB upon BE. So you will find the value of BE first. BE की वैल्यू आ जाएगी आपकी AB अपॉन √3 बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 है. यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है. BE की वैल्यू आ गई AB अपॉन √3. नाउ यू विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल देखो अगर ये जो ED है अगर वो 7 मीटर है तो BC भी 7 मीटर होगा, ठीक है, ठीक है, BC भी 7 मीटर होगा. ओके, सो इन ट्राइंगल EDC यू विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई, EDC में नहीं, इन ट्राइंगल BCE में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो tan 45 विल बी इक्वल टू BC अपॉन BE, राइट. सो BE इज इक्वल टू BC बिकॉज tan 45 इज़ 1 ओनली, ठीक है. अब BC हमारे पास यहाँ भी है, BE मेरे पास यहाँ भी है, ठीक है. अब ये इस BE की जगह मैं BC लिख दूंगा ना वहाँ, तो BE को अगर मैं BC से रिप्लेस कर दूंगा तो BC इज इक्वल टू AB अपॉन √3. कैन आई राइट, ठीक है. सो कुछ तो होगा, AB की वैल्यू निकालनी है, 7 का तो यूज़ ही नहीं हुआ, सॉरी अब करेंगे ना यूज़. BC इज 7 ना, सो 7 √3 इज़ योर AB, ठीक है, आ गया ना 7 √3. सो टोटल हाइट ऑफ द टावर विल बी 7 √3 + 7 दैट इज़ 14. सॉरी नहीं, ये तो प्लस ही नहीं हो सकते भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या प्लस हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कहीं ज़बरदस्ती प्लस करके आ जाओ. 7 + 7 √3 इज़ योर फाइनल आंसर. अब ये 14 √3 मत बना देना, इसको 7 कॉमन लोगे आंसर हो जाएगा √3 + 1, बस यहीं छोड़ना है इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, lighthouse है ये रहा, ठीक है. This is the lighthouse. There is an observer ऊपर, अरे यार क्यों भेज रहे हो वीडियो अभी, ठीक है. एंड एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 30, ज़्यादा नहीं हो सकता वो. और मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, देख लो मैंने बताया नहीं, देखो ये डिप्रेशन की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में. तो अगर ये 45 है तो अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस विल बी ऑल्सो भी 45, क्योंकि पहली शिप का एंगल जो है 45 का है. और मान लो अगर ये 60 है, सॉरी ये 30 है, तो अगर ये वाली दोनों साइड पैरेलल है, ये देखो मैं ब्लैक वाली दोनों पैरेलल है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये 45 तो ये भी 45 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आई हैव एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, दैट इज़ वाई आई हैव अप्लाइड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. मेंशन ही रहने देते हैं उसको, ठीक है. ओके, लेट्स नेम इट A, B, C and D. You need to find the distance between the two ships, that is CD, right? Ship 1 and ship 2, right? And from the top of the 75 meter is your lighthouse, ठीक है. AB is 75 meter. Again you have two triangles, you need to find CD, right? ABD tan 30 is equal to AB upon BD, right?
So 1 upon root 3, AB is 75. Can I break BD into CD plus BC? Okay. Yes. And in triangle ABC, tan 45 is equal to AB upon BC, right? So tan 45 is 1, so BC will be equal to AB, and AB is 75, so BC will also be 75. So BC you have got 75. ठीक है, तो BC भी तो 75 होगा ना, क्योंकि अगर AB 75 है. अब अगर BC 75 है फ्रॉम 1 आप लिखोगे तो यहाँ BC की वैल्यू डाल दोगे, आपको CD मिल जाएगा. सो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, CD प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3. सो CD की वैल्यू हो जाएगी 75 कॉमन लोगे रूट 3 माइनस 1. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CD. नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, 15 and 16 है ना. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. ये एक लड़की है, इसने बैलून देखा, यहाँ पे एक बैलून है और यहाँ पे एक बैलून है. ठीक है, और ग्राउंड से इस बैलून की जो हाइट है ना, ग्राउंड से देखो ये लड़की खुद 1.2 मीटर टॉल है. दिस गर्ल इज हरसेल्फ 1.2 मीटर टॉल, 1.2 meter tall, and the height from the ground is 88.2 meter, right? So from her eyes she will observe ना, everyone observes from their eyes only ना. so eyes से इसका angle of elevation reduces to 30 degree. मतलब पहले ये बैलून यहाँ था with an angle of 60 degree. now this balloon has reached there, now the angle becomes 30 degree. ठीक है, सो इसको अटैच कर लेते हैं. ओके, दिस इज द होल स्टोरी, राइट? सो लेट्स नेम इट A, B, C एंड D, राइट? ओके, हाइट का हमें कोई रोल नहीं है, 1.2 मीटर. अभी देखो अगर वो अपनी आंखों से देख रही है तो, और ये जो डिस्टेंस है 88.2 मीटर है पूरा सी से लेकर ग्राउंड तक का, तो मेरे को यहाँ पे उसकी आंखों से डिस्टेंस निकालना है बैलून का. तो 88.2 में से मुझे 1.2 मीटर उसकी हाइट जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा पास आ जाएगा 87. सो वी हैव गॉट BC एज 87. इसको भी नाम दे देते हैं यहाँ पे ABCDE ले देते हैं. सो एज इफ BC इज 87, DE विल ऑल्सो बी 87. ठीक है. Okay, now you need to find the distance traveled by the balloon. Okay, DC you need to find, DC you need to find, क्योंकि बैलून ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना. ठीक है, इन ट्राइंगल ADE में आप tan 60 लगाओ क्योंकि बैलून पहले पास था तो tan 60 लगेगा. सो DE अपॉन AE. अब ओके, tan 60 इज रूट 3, DE इज 87, AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 अपॉन रूट 3, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AE. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल देखो, एक अगर आपको डायग्राम ढंग से नहीं दिख रहा तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो. ACB tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट? ये रहा AB. ठीक है, tan 30 इज़ 1 अपॉन रूट 3. BC यू नो 87. ठीक है, BC 87 हो गया ना, ध्यान से देखो. और AB कैन आई ब्रेक AE प्लस BE. ठीक है, इफ़ आई कैन ब्रेक AB इंटू AE प्लस BC, देखो यहाँ AE प्लस BE. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ AE फ्रॉम यहाँ से, ये देखो ये AE की वैल्यू है ना, ये रही. तो इस AE की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे अब हम 87 अपॉन रूट 3 को. ठीक है, सो 1 अपॉन रूट 3 को ऐसे ही रहने दो, 87 को 87 ही रहने दो. और AE की वैल्यू क्या थी 87 अपॉन रूट 3 थी, और BE यहाँ से निकालनी है. अब BE के लिए खेलना है, क्योंकि BE इज़ द सेम डिस्टेंस एज DC. सो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 1 अपॉन रूट 3, 87 सबसे ऊपर जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 सबसे ऊपर. सो 87 प्लस BE इंटू रूट 3. ओके,
now you need to separate BE. So 87 into 3, 87 plus BE root 3 is equal to 87 into 3. So BE की value will be 87 into 3 minus 87 upon में root 3. This is the value of BE. So 87 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2 और नीचे रूट 3. ठीक है, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ BE. तो 174 अपॉन रूट 3, नहीं सॉरी 2 8 16, हाँ सही तो है, 174 अपॉन रूट 3 इज़ योर फाइनल आंसर. यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप टावर एक. दिस इज अ टावर. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car. यहाँ पर एक गाड़ी है at an angle of depression of 30 डिग्री. देखो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी. एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री. अगेन यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30. ठीक है. 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. थोड़ा इसको दूर कर देते हैं. 30 को थोड़ा यहाँ बनाते हैं, थोड़ा दूर. दिस इज़ 30 डिग्री. पहले गाड़ी यहाँ थी, अब 6 सेकेंड बाद गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है. ठीक है. नाउ द एंगल इज एलिवेशन इज 60 डिग्री. देखो अब ये डिप्रेशन 60 डिग्री का है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. और ये डिस्टेंस है 6 सेकेंड्स का. ठीक है. सो ए बी सी एंड डी, राइट. ओके. नाउ कैन यू फाइंड DC. DC देखो DC इज डिस्टेंस ओनली. DC इज डिस्टेंस फ्रॉम D टू C ओनली, राइट. ओके. सो एवरीवन नोज द डिस्टेंस का फॉर्मूला इज स्पीड इनटू डिस्टेंस, राइट. स्पीड इनटू डिस्टेंस. ठीक है. sorry speed into time. So everyone knows the formula of distance is speed into time, right. So distance from D to C will be speed from D to C into time from D to C, right. Speed we don't know. Let's take this. Let the value of speed be S. Value of speed be S meter per second. ठीक है. तो S into time you are given 6 seconds. Okay. So the distance from D to C, can I write 6S? Speed into time, 6 into S, right. Speed is S and time is 6. So DC is 6S. Right. Now let's assume time taken by car from C to B is T सेकेंड्स, राइट. सपोज कि C से B तक आने में T सेकेंड्स लगते हैं. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट T प्लस 6 जो होगा. ठीक है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट T ओनली. ठीक है. ये मिटा रहा हूँ मैं, तुम्हें लिखना है. नाउ अगेन यू हैव टू ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ABC आप लगाओ 1060 लगाओगे. कुछ टावर की हाइट वाइट कुछ गिवन है. देखो मुझे टावर की हाइट चाहिए. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द कार. देखो ठीक है, कर लेते हैं यार. अगर देखो टावर की हाइट तो गिवन है. होगा इससे. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. देखो ट्राई करते हैं. AB अपॉन BC, राइट. सो देखो ये अगर T सेकेंड्स है तो टाइम कितना हो जाएगा. स्पीड तो सॉरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा BC का. फ्रॉम C टू B डिस्टेंस कितना हो जाएगा. टाइम इंटू स्पीड. सो स्पीड इंटू टाइम. सो S इंटू T. ठीक है. सो AB अपॉन S इंटू T इज इक्वल टू √3, राइट. ठीक है. ओके. सो इन ट्राइंगल ABD में लगाओ आप ट्रिग्नोमेट्री. ABD में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपका हो जाएगा 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, राइट. ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो ABD इफ़ यू ऑब्जर्व 1030 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD, राइट. ओके. इसको मिटा दें यार, कहाँ पे लिखे हैं, अब जगह ही नहीं है. इसको ऊपर से मिटाते हैं. अब
यहाँ से देखो आप, tan 30 इज़ 1/√3. कैन यू फाइंड AB? AB इज़ 1/√3 इंटू BD. BD कैन आई ब्रेक? BD देखो ये BD है ना इंटू में, सो AB इज इक्वल टू BD कैन आई ब्रेक CD प्लस BC अपॉन √3, राइट. एंड इफ़ यू एग्री विद मी, CD इज़ 6S एंड BC इज़ ST अपॉन √3, राइट. सो यू हैव AB फ्रॉम दिस, ये AB है और ये भी AB है यहाँ से, ठीक है. कैन यू इक्वेट नाउ बोथ दी AB? कैन यू इक्वेट? यस वी कैन इक्वेट. विल easily find a time on equating both AB. So 6S plus ST upon √3 will be equal to √3 into ST, right. बोथ दोनों AB को मैंने इक्वेट कर लिया है. So our answer will be 6S plus ST is equal to √3 into √3 is 3ST, right. S कॉमन ले लो तो 6 plus T is equal to 3ST. S से S will get cancelled and 6 plus T is equal to 3T. So 2T is equal to 6 and T is 3 seconds. So we have got 3 seconds as our time. So find the time taken by the car to reach the foot of the tower. So total time is 6 seconds पहले ले लेते, 3 seconds from C to B ले रहा है. So from total time from D to B will be 6 plus 3, that is 9 seconds. Question number 16th, last question. The angle of elevation at the top of the tower from the 2 points. Tower है again. Angle of elevation 2 points, point 1, point 2, A, B, C, D. Right, angle of elevation of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. Okay, this is 9 meter and this is 4 meter. Same height with it are complementary. Okay, if this angle is theta, complementary it means the sum of both the angles should be 90 degree. The sum of both the angles should be 90 degree. If I assume that one angle is theta, so shall I write this angle is 90 minus theta, because the sum of both the angles should be 90 degree. This is the meaning of complementary angles. Okay, if I have assumed one angle is theta, I have to take 90 minus theta as the other angle, right. Okay, again you have two triangles in triangle ABC. I am not sure that if complementary angle का concept is coming in your exam or not, but you should remember 3 complementary angles, right. That is sin 90 minus theta is cos theta, ये होता है, ये याद कर लो. Cos 90 minus theta is sin theta and tan 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta again will be tan theta. Okay, so ये तीन तो आप कम से कम याद कर लो अगर नहीं भी आ रहा एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट. सो इन ट्रायंगल ABD विल अप्लाई tan 90 minus theta is equal to AB upon BD, and BD you know, tan 90 minus theta is equal to AB upon BD, you know 9. Tan 90 minus theta can I write from here, cot theta is equal to AB upon 9. Okay, so now in triangle ABC, tan theta will be is equal to AB upon BC, right. So can you find the value of AB from here? AB is equal to tan theta into BC, right. अगर आपको AB की वैल्यू यहाँ से मिल गई, यहाँ पे डाल दो, ये AB है tan थीटा इंटू BC. अब यहाँ डालोगे cot थीटा में, सो cot थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू कैन आई राइट tan थीटा इंटू BC अपॉन में 9. ठीक है, देखो यहाँ से वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है. ओके, ऐसे ही होगा ना क्वेश्चन. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट तो मिट गई यार, BC. AB की तो वैल्यू चाहिए तो AB को रिप्लेस नहीं कर सकते अगेन यार. सॉरी AB की तो वैल्यू चाहिए. ठीक है. अब एक काम करो, कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को लिखो 1/tan थीटा. इफ़ यू नो द ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यू शुड नो दैट कॉट थीटा इज 1/tan थीटा. सो tan थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से. यस, tan थीटा की वैल्यू विल बी 9/AB. ठीक है,
अब यहाँ से इसको मिटाओ, अब लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे tan थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, राइट। बी सी यू नो 4 मीटर, tan थीटा की वैल्यू लिखो 9 अपॉन ए बी, ठीक है यहाँ से। सो ए बी का स्क्वायर विल बी 9 इंटू 4 इज 36, so AB will be 6 meter. So the height of the tower is, prove that the height of the tower is 6 meter. Yes, we have proved it, 6 meter. Okay, so with this question we have solved the NCERT of chapter 9, applications of trigonometry. Apart from this NCERT, I have made 2 videos separately for the exam type questions. Okay, please visit the link in the description of for those 2 videos and please do those questions. Okay, those questions are very important exam type questions. Apart from NCERT, you have to do those videos. Okay, उन क्वेश्चंस, उन वीडियोस के क्वेश्चंस को करना ही करना है, जो मैं अभी लिंक में डालूंगा। 2 वीडियोस हैं एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, ठीक है। मेरा चैनल का नाम डाल देना शेयर स्टडी, अगर सर्च मारना है तो, ठीक है। वो वीडियोस भी करके जाना, वो वीडियो कर लोगे और ये NCERT कर लोगे, आपका डन है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में थम्स अप करके आप जा सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।